جنوبی پنجاب میں نمونیا اور گیسٹرو کا مرض بڑھنے لگا۔ ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا سے متاثرہ 18 بچے رپورٹ ہوئے ہیں۔ بہاولپور میں نمونیا مرض قیمتی جان ہی نکلنے لگا۔ 24 گھنٹے میں نمونیا کی وجہ سے ایک اور بچہ لقمہ یا جل بن گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نمونیا کے حوالے سے۔ ملتان میں نمونیا کے کاروبار جاری ہے، جس میں ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا سے متاثرہ مزید 18 بچے رپورٹ ہوئے ہیں۔ بہاولپور میں نمونیا مرض قیمتی جان ہی نکلنے لگا۔ ملتان میں نمونیا کے کاروبار جاری، 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے باعث 18 بچے رپورٹ۔ چلڈرن اسپتال میں نمونیا اور بچے زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسپتال میں داخل بچوں کا علاج جاری ہے۔ شہر میں 1 جنوری سے اب تک نمونیا کی وجہ سے 58 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بہاولپور میں نمونیا جان لیوا بن گیا۔ 24 گھنٹے میں نمونیا کے باعث ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ گزشتہ 3 دنوں میں نمونیا سے 4 بچے دم توڑ گئے۔ رواں سال نمونیا کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 79 ہوگی۔ شہر میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے مزید 14 بچے رپورٹ ہوئے۔ 1 جنوری سے اب تک نمونیا سے متاثر 1480 بچے اسپتالوں میں لائے گئے۔ ملتان میں گیسٹرو کے شکار مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ شہر کے مختلف اسپتالوں میں گیسٹرو کے 144 مریض رپورٹ۔ نشتر اسپتال میں 41، چلڈرن کمپلیکس میں 47، ڈسٹرکٹ اسپتال میں 22 اور ٹاؤنز اسپتالوں میں گیسٹرو کے 28 مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر اولی میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار۔ پھل، سبزیاں، چکن اور انڈے بدستور مہنگے۔ شہری اشیاء خورونوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، شہری اشیاء خورونوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں، جس میں پھل، سبزیاں، چکن اور انڈے بدستور مہنگے۔ ملتان میں ناجائز منافع خور سرگرم، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ مارکیٹ میں لہسن اور ادرک 600 جبکہ کچنار اور بھنڈی 400 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری نیٹ نامہ میں لہسن 540، ادرک 480، بھنڈی 280 اور کچنار 220 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 320، پیاز 200 اور ٹماٹر 120 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری ریٹ کے مطابق ہری مرچ 132، پیاز 150 اور ٹماٹر 80 روپے کلو مقرر ہے۔ ٹنڈے 600، پھول گوبھی 160 اور آلو 80 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب 240 سے 400 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کھجور 600، اسٹرابری 400 اور انار 500 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ چیکو، امرود، خربوزہ اور پپیتا 200 سے 250 روپے فی کلو دستیاب۔ نٹ نامہ میں چکن 577 روپے کلو جبکہ فارمی انڈا 269 روپے فی درجن مقرر ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین فہیم شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان ضلع انتظامیہ کے غیر قانونی پیٹرول یونٹس اور سلنڈرز کی ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس کے باوجود شہر بھر میں LPG سلنڈر کی ریفلنگ جاری ہے۔ ملتان ضلع انتظامیہ غیر معیاری LPG سلنڈرز اور غیر قانونی گیس ری فلنگز کے خلاف متحرک۔ رواں ماہ 50 سے زائد مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف کا کہنا ہے کہ غیر قانونی گیس ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ہم یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب تک ہم 50 سے زیادہ کوئی FIRs دے چکے ہیں بہت تھوڑے سے عرصے میں۔ ضلع انتظامیہ اس وقت ان تمام لوگوں کے خلاف متحرک ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ آگے آپ اور بڑے آپریشنز بھی دیکھیں گے۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر محکمہ سول ڈیفنس کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ چیف انسٹرکٹر فہیم امداد کا کہنا تھا کہ ملتان سلنڈر دھماکے کے بعد سے شدید سختی اور چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے۔ جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہرم گیٹ والا جو گیس لیکیج کا واقعہ تھا، اس کے بعد سے ہم نے بھرپور ایک کریک ڈاؤن شروع کیا، جس میں 35 جو FIRs ہیں اور جو کارروائیاں ہیں LPG کے خلاف وہ ہم کر چکے ہیں ابھی تک، اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ جتنے بھی ڈیلرز ہیں انہیں بھی ہم نے کہا ہے کہ اپنے جو سیفٹی کے ارینجمنٹس وغیرہ ہیں وہ اب کمپلیٹ کریں۔ گیس ریفلنگ کرنے والوں کا موقف ہے کہ محکمہ سول ڈیفنس سے LPG گیس کی ریفلنگ کرنے کے لیے مکمل ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ کھلا دروازہ، ہیلمٹ اور آگ بجھانے والے آلات بھی دکان میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ کمپنی سے جو ہے نا یہ رجسٹر شدہ یہ سلنڈر ہے، تو اس کے لیے ہماری دکان یہ چھوٹی سی دکان ہے، نہ اس میں ہم ایسا کام کرتے ہیں، یہ ساری ہر چیز سہولت کے لیے اپنی صحیح ہے۔ سکیورٹی سلنڈر بھی لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی حادثات، اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ آگ وغیرہ بجھا سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ملتان میں سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جس کے بعد سے انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر رانا بلال، ماہر عمران نواز کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب بھر میں LPG مافیا بے لگام۔ مظفر گڑھ، رحیم یار خان اور بہاولپور میں غیر قانونی ریفلنگ سٹیشنز اور غیر معیاری سلنڈرز کی بھرمار۔ غیر معیاری LPG سلنڈر کے استعمال سے حادثات کا خدشہ ہے۔
मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी माफिया आवाम को लूटने लगा। महंगाई के साथ गैर कानूनी फिलिंग स्टेशंस की भी भरमार है। शहरी कहते हैं घरेलू सिलेंडर की कीमत में 300 से 350 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत 3400 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 13,400 तक वसूल की जा रही है। शहरियों ने खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। गैर मयारी सिलेंडर्स और गैर कानूनी रीफिलिंग स्टेशन हादसात का बड़ा सबब है। लेड फायर इंस्पेक्टर फरहान जिलानी का इस हवाले से कहना है कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में गैस फिलिंग करना गैर कानूनी है। वेल्डिंग वाले गैर कानूनी सिलेंडर्स धमाके का सबब बनते हैं। रेस्क्यू टीम में सिविल डिफेंस और मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हैं। गैर मयारी सिलेंडर्स की रोकथाम से हादसात को कंट्रोल कर सकते हैं। उधर बहावलपुर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार है। बहावलपुर रिंग रोड के इतराफ मिनी पेट्रोल एजेंसियां भी कायम है। शहर में मशीनों की गैर कानूनी तैयारी का भी इंकशाफ हुआ है। अंदरून शहर यूनिट्स बनाने वाली वर्कशॉप्स रोही मंजरेआम पर ले आया। शिकारपुरी गेट पर नए और पुराने पेट्रोल यूनिट की मुरम्मत और तैयारी का अमल बगैर रजिस्ट्रेशन और एनओसी जारी। वर्कशॉप मालिक का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से उसे कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। सुबह भर के लिए 630 बसों की खरीदारी पर 50 अरब के अखराजात का तखमीना। महकमा ट्रांसपोर्ट की हुकूमत को माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर रिपोर्ट पेश। बहावलपुर 42 और मुल्तान के लिए 100 बसें खरीदी जाएंगी। बसों की खरीदारी का इब्तदाई प्लान भी पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सुबह भर के लिए 630 बसों की खरीदारी पर 50 अरब के अखराजात का तखमीना। महकमा ट्रांसपोर्ट को हुकूमत माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर रिपोर्ट पेश। बहावलपुर 42 और मुल्तान के लिए 100 बसें खरीदी जाएंगी। बसों की खरीदारी का इब्तदाई प्लान भी पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया गया। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फीस वसूली रोकने के लिए मुरासला जारी। गाड़ी की नंबर प्लेट की 2000, मोटरसाइकिल की फीस 1500 वसूली जारी है। डीजे एक्साइज ने फीस वसूली रोकने की समरी सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दी है। आपको गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि फीस वसूली रोकने के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है। गाड़ी की नंबर प्लेट्स की 2000 जबकि मोटरसाइकिल की फीस 1500 वसूल की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी एक्साइज ने फीस वसूली रोकने की समरी सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवाई है। लाख से जायद शहरियों से 4.25 अरब 30 के करीब फीस वसूली की गई है। आपको अपडेट करें, एक्साइज हुकाम का ऐसा कहना है कि 30 लाख से जायद शहरियों से 4.25 अरब के करीब फीस वसूल की गई है। 25 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सेशन जजेस को ओहदे से हटा दिया गया। 9 अजला में तैनात सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जजेस को 25 मार्च तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कमर सुल्तान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजनपुर तैनात। सजाद हुसैन सिंधड़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भक्कर तैनात। मुश्ताक अहमद ओजला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरगढ़ तैनात किए गए हैं। अमजद नजीर चौधरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिहाड़ी तैनात किए गए हैं। शाजिब सईद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलनगर, जबकि सेशन जज मोहम्मद यार गोंदल सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बहावलपुर तैनात किए गए हैं। नाकिस कारकर्दगी पर सेशन जज मुल्तान इरफान अहमद सईद को ओहदे से हटा दिया गया। सेशन जज इरफान अहमद सईद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। सेशन जज बहावलनगर मोहम्मद आरिफ राना को ओहदे से हटा दिया गया। सेशन जज भकर मोहम्मद हाफिज हमीद को हाई कोर्ट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान चौधरी खालिद को प्रमोट कर दिया गया है। साबिक कमिश्नर की 19वें ग्रेड से 20वें ग्रेड पर तरक्की। चौधरी खालिद मंजूर की प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान चौधरी खालिद को प्रमोट कर दिया गया है, जबकि साबिक कमिश्नर चौधरी खालिद की 20वें ग्रेड में तरक्की हुई है। चौधरी खालिद मंजूर की प्रमोशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े। बहावलपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में स्कूल टीचर का तालिबा पर तशद्दुद। टीचर की जॉब परफॉर्मेंस बारे शिकायत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ने टीचर को मुअत्तल कर दिया है। आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में स्कूल टीचर का तालिबा पर तशद्दुद। बहावलपुर में टीचर की जॉब परफॉर्मेंस बारे शिकायत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ने टीचर को मुअत्तल कर दिया। साल 2024 के पहले 2 माह और 20 दिन ट्रेन हादसात में इजाफा। 1 जनवरी 2024 से लेकर 20 मार्च तक 31 ट्रेन हादसात का शिकार हुई हैं। गुज़िश्ता साल 2023 में साल भर में
84 ट्रेन हादसात रिकॉर्ड किए गए हैं। हादसात में मालगाड़ियों की रिलेटमेंट के 17 वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। मुसाफिर ट्रेन की डी रिलेटमेंट की 9 वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। राजनपुर में जर्मन फलाही तंजीम के सीईओ जोहान्स पीटर का दौरे के दौरान जिला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। फलाही तंजीम की जानिब से जारी मंसूबों का मुआयना किया। मिस्टर जोहान्स पीटर की स्कूल के बच्चों और किसानों से मुलाकात। जोहान्स पीटर का कहना था कि ये जिला पसमानदा और आफत ज़दा है। तमाम इदारों को मिलकर जिला की तरक्की के लिए काम करना होगा। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सरबराहान की शिरकत। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर में जर्मन फलाही तंजीम के सीईओ का दौरा। डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुल्तान डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। उन्होंने सहूलत सेंटर और अस्पताल का मुआयना किया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने अस्पताल में पौधे भी लगाए। उन्होंने सहूलत सेंटर और अस्पताल का मुआयना किया। डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने शजरकारी को फरोग देते हुए अस्पताल में मुख्तलिफ पौधे भी लगाए। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक जलालपुर डॉक्टर जमशेद अख्तर ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को मवेशी पालने वालों को दी जाने वाली सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि महकमा लाइव स्टॉक वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक काम कर रहा है। मवेशी पाल हजरात को बेहतरीन वेटरनरी सर्विसेज की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। आलमी यौम जंगलात मुल्तान में हेल्थ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब में शजरकारी मुहिम का आगाज। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जनूबी पंजाब ने पौधा लगाया। पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीलियों से नबरदाजमा है। कमर जमान शजरकारी करके दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रखा जा सकता है। डिप्टी सेक्रेटरीज सज्जाद हसनैन समेत दीगर अफसरान हमरा थे। मुल्तान में भी आलमी यौम जंगलात के मौका पर कमिश्नर ने आर्ट्स काउंसिल में पौधा लगाया। कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि शजरकारी मुहिम के अपना अहम किरदार अदा करना होगा और कमिश्नर मरियम खान ने पौधा लगाकर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की। एडिशनल कमिश्नर अब्दुल जब्बार समेत दीगर की शिरकत। जंगलात के आलमी दिन पर जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी ने मुल्तान सर्किट हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। आलमी दिन पर जनूबी पंजाब में शजरकारी मुहिम का आगाज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी ने मुल्तान सर्किट हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। रूही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा जंगलात जनूबी पंजाब ने सरकारी नर्सरियों में 25,80,000 पौधे तैयार किए हैं। महकमा जंगलात जनूबी पंजाब मुहिम के दौरान 25 लाख पौधे लगाएगा। उन्होंने हदायत की कि हम महकमा शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। बेसिकली इस मुहिम का हिस्सा है कि ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट किया जाए। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने प्लान किया है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर जून के एंड तक हम लोग कोई 25 लाख सैपलिंग्स जो हैं ये प्लांट करेंगे और 25 लाख सैपलिंग्स ऑल ओवर साउथ पंजाब होंगी। जो तीनों डिवीजन्स हैं हमारे वो उसमें कवर होंगे। शजरकारी मुहिम के दौरान सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील, सेक्रेटरी सर्विसेज इंजीनियर अमजद शोएब खान तरीन, सेक्रेटरी जंगलात सरफराज खान मक्सी, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अफजल नासिर और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन उबैदुल्लाह कोकर ने भी पौधा लगाया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने शहरियों से भी शजरकारी मुहिम में शामिल होकर अपना कौमी फर्ज निभाने की अपील की। ज्यादा विगरसली इस कैंपेन को फॉलो किया जाए और अपने लेवल पे इंडिविजुअली गवर्नमेंट के भी हाथ मजबूत किए जाएं, अपने तौर पे इंडिविजुअली प्लांट्स लगा के और ग्रीन कवर पाकिस्तान का ओवरऑल ग्रीन कवर बढ़ाने की ज़रूरत है। ग्रीन कवर जितना बढ़ेगा उतना हमारे मुल्क से आलूदगी ख़त्म होगी, क्लाइमेट चेंज के मसाइल ख़त्म होंगे, ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल ख़त्म होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का कहना था कि सरकारी स्कूलों में एक उस्ताद एक दरख्त और एक तालिब इल्म एक दरख्त के स्लोगन से शजरकारी मुहिम जारी है ताकि आइंदा नस्लों की बका के लिए पौधों की अहमियत बारे आगाही दी जा सके। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा वसीम शहजाद, रूही, मुल्तान।